it depends, but in my view, if he's in mindset of the person, like he can make the money from it, it could be a nice thing for taking a loan, not a problem. Sure. Uh, Muskan, you have any comment on the whole discussion we had? Uh, from the yesterday discussion. Yeah, I mean, you have any comment, question, or No, actually, today we are going to discuss about the scams. Like, we ended up the discussion, like, we will discuss about how the scam affect the yeah. So I'm normal just public. doing a tapering from yesterday to today. Yeah, okay. Just asking everyone if they have any comment, question from yesterday housing loan part. So I guess you don't have anything. Ujjwal, I think you were not there yesterday, I guess, right? You were there for some time. Ujjwal, are you there? Yes, sir. हाँ बताओ. Did you were not there yesterday, right? Sir, I am there, sir. Okay, you were there. Actually, sir, yeah. Actually, sir, बहुत काफी ब्रीफ डिस्कशन था सर, बट इसमें प्रॉब्लम आज आई थिंक हो जाए वो चीज कि सर कंक्लूजन नहीं निकल पाया था कि एक्चुअल में लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. और सर आई थिंक एज ए लाइक अ बिगनर, एक स्टूडेंट, फिर अपनी लाइफ में हम भी 2-3 साल बाद उस स्टेज पे आ ही जाएंगे कि हम लोन एक स्टेज होगी कि हमारी कि उस कंफ्यूज होंगे कि लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो आई थिंक सर हम लोग इस चीडी से थोड़ा सा ब्रीफ में ये चीज हम बहुत पहले सीख जाते हैं तो मेरे लिए बेनिफिट होगा. तो सर इस पे थोड़ा सा आज फोकस कीजिएगा एटलीस्ट कि कंफ्यूजन ये थोड़ी सी दूर हो जाए कि मतलब कि लोन लें, कैसे लें, किस टाइप में लेना चाहिए, इस टाइप में. Sure. ठीक है. Sejal, are you there now? Or... Okay. Mr. Hari, any comment, conclusion from yesterday? No, actually, hello, am I audible? Yes. Yeah, conclusion in the sense like depends from family to family, person to person. That's what I'm saying. And apart from that, banks should also make home loans more affordable, and they should give loans to more and more eligible people or eligible borrowers, because like the loans, bank loans are also now there is lots of constraints in that not everyone is getting the bank loan. So I think there should be some schemes launched for people who are really in need of such housing or housing loan. And yes, but coming to from person to person perspective, it will vary. We cannot come to a conclusion directly like that whether we should go for a home loan or not. It will vary from case to case and person to person. That's what I feel. Sure. Yeah. So yeah, Ujjwal, actually your answer it varies from person to person. एक general answer. Yes, Saurabh. अच्छा, मैं उज्जवल के सवाल का जवाब देता हूँ. देखो, होम लोन अगर जरूरत नहीं होता किसी को या फिर वो सही नहीं होता तो इतने होम लोन्स जो आज तक बिक रहे हैं या ये जो पूरा बिजनेस है बैंक का, ये बंद हो चुका होता. तो इसका मतलब होम लोन लेने वाले जिनको घर की जरूरत है और पैसे नहीं है वो तो होम लोन ले रहे हैं. तो जैसा हरी ने भी कहा, ये केस टू केस डिफर करता है, लेकिन आपको जरूरत है, आपके पास, आपको अपना घर की जरूरत है और आपको लगता है कि आपके पास पैसे 20 साल बाद आएंगे और आपको आज ही घर चाहिए, तो आप होम लोन लीजिए. अगर आप 20 साल तक वेट करना चाहते हैं, जैसे कल बहुत लोग बोल रहे थे कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम घर लेना चाहिए, अगर आप वैसा सोचते हैं तो मत लीजिए होम लोन और अपना पैसा बचाइए, उसके बाद घर लीजिए. लेकिन उसके बाद घर लेना, घर का क्या प्राइस हो जाएगा वो भी सोच लीजिएगा. सो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल है, लेकिन मेरे हिसाब से तो एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं आता हूं, तो हमें तो घर चाहिए और हम तो घर मिडिल एज में ही ले लेंगे.
आई डोंट थिंक आई विल वेट फॉर जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा तब लूंगा, या जब मेरे पास पैसे होंगे तब लूंगा। पैसे नहीं हुए तो इसीलिए मैं अपना बोल सकता हूँ, आई विल मतलब मैंने तो ऑलरेडी घर लिया हुआ है, लेकिन अगर मेरे पास घर नहीं होता तो भी मैं घर इसी टाइम पे लेता with the help of a home loan. Sure. Yeah, Aman has joined. Aman, you have any take on home loan? Any comment or question? No, I am newly joined. I will add after some time. Okay. So why are you late, Aman? So थोड़ा डिनर लेने में लेट हो गया सर. Okay. ठीक है. So let's talk about some banking defaulters. Okay. So question on the floor, let's say that if you take a loan, keep taking loan, when the loan becomes a very significant amount 6,000 crores, run away from India. Is it a good move or a bad move? Let's hear from everyone. Nandan, what do you think? Sir, uh, are you pointing out any bank owners, like any managers who went off from the country? No, I'm just asking, consider a hypothetical scenario in which you kept taking loan, and the loan Okay. became like 1,000 crore, 10,000 crore, and then you just run away Okay. from India. What do you think India. about the person and the bank? Like, let's talk about from both sides. Person side, is the person cunning, I mean smart, or is the person having some issues, that's why he ran away, or running like this is a smart move because bank cannot, I mean, catch the person if the person is outside the country. And yeah, what do you think? What do you think about this person? Like, what's the first impression if somebody Yes. runs away with Yes. 2,000 crore? What do you think of this person? As a mindset of that person or of the mindset of the banker? As a mindset of a public, like you are As a paying your mind of, loan on time, and as then you see as a somebody man. running with 6,000 crore without Okay, without I getting got your point. penalized. Yeah. Yes. Sir, as a common person, what I would think is, if a bank is giving such an huge amount for that person, as a brand, bank is giving. And what this bank is doing as in a common thing, is a small, yes, a small loans, if they are not paying off, they would screen them as an individual. It's an, yes, 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 Yeah. yes. So you'll feel bad, right? The government, I would government has to be more generalized while giving the loans to the individuals. I think so. Or while they are flying away, what this world is doing, like what this government is doing, Mhm. they have to see of who are going, who are coming. All those sessions I have to be done. I think so. Okay. So you will probably blame the government more than the Yes, person. yes, yes. How come? How It's an come he ran away? high level. It's an high Uh, level. high level Yes, scam. yes. Okay. Ujjwal, what do you think? Somebody running away with 6,000 crore loan, smart guy or dumb guy? What do you think? सर आई थिंक डिपेंड टू सिचुएशंस है मेरे हिसाब से, कि लाइक किसी को बिजनेस करना है और उसके पास कैपेसिटी भी है और बड़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे सौरभ सर ने बोला, तो वो ले सकता है. बट अगर मैं लेने जाऊंगा तो ये मेरे लिए बेवकूफी है, जस्ट बिकॉज कि अपने इंडल्ज के लिए मुझे एक घर बंगला चाहिए. यहाँ घर बंगले का बात नहीं हो रहा है, यहाँ लोन का बात हो रहा है सिर्फ जनरल. 6,000 करोड़ तुमने लोन लिया, तो बुद्धिमानी क्या है, किस चीज में है? 6,000 करोड़ लेके भाग जाओ इंडिया से और ऐश करो, या 6,000 करोड़ चुका के वापस जीरो पे आ जाओ? दैट्स अ क्वेश्चन. सर इसका मैं नहीं दे पा रहा हूँ सर, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया. अच्छा ठीक Sorry, है, sir. और लोगों से पूछते हैं. मिस्टर हरी, व्हाट डू यू थिंक? 6,000 करोड़ लेके भाग जाना चाहिए या वापस चुकाना चाहिए? नहीं, willful defaulter तो definitely
नहीं होना चाहिए. अगर कोई है willful defaulter तो that is a crime. I feel it's a very big crime against the government and the public. जो public का पैसा होता है, the hard earned tax money, the tax we pay, वही पैसा बैंक के पास भी होता है और वही पैसा लेके कोई एक आदमी भाग जाए तो it is a crime. So definitely that person is very cunning and he has all the knowledge of the financial systems और कैसे उसने वो गेम खेलने में बहुत सा स्किल्स लगता है, बहुत सारे like I will say people, they have to bring many government officials also, उनको भी पैसे खिलाते हैं वो लोग, and from apart from that they will dupe many other banks. So अगर हम मैं ये जो नीरव मोदी का ही केस एग्जांपल ले लें तो he used to just like take loans on the basis of collateral or company which never exists. So like he has a diamond business, Nirav Modi. So Nirav Modi का जो modus operandi या तो कैसा था कि he used to import and export diamonds from different countries. So most of the time what happens, the dealings are not that transparent. So transparency और backup यानी backup payment system establish करने के लिए they used to give a letter of guarantee from the bank. तो ये करना means it's a job of an person. Definitely वो कुछ big shot है, उसने बहुत ज़्यादा he has too much of knowledge to that things and he has into that is a very big crime. Fine. So fugitives means they are the most wanted people. Okay, Saurabh. ओके Yes. तो मैं दो नए, एम आई ऑडिबल विशाल? Yes, yes. ओके तो मैं दो एस्पेक्ट्स यहाँ पे टच करूंगा. सबसे पहले तो लोन लिया कैसे जाता है. लेट्स से कि उस किसी को 100 करोड़ का लोन चाहिए, तो पहली बात तो ये है कि बिना गवर्नमेंट और बैंक के सीनियर ऑफिशियल्स को ब्राइब किए 100 करोड़ का लोन तो मिलेगा नहीं. तो यहाँ पे कल्प्रिट सिर्फ नीरव मोदी नहीं है, वो सारे लोग हैं जिन्होंने उसको असिस्ट किया 100 करोड़ का लोन दिलाने में. तो कल्प्रिट सब लोग हैं. अब सेकंड, नीरव मोदी के बैड इंटेंशंस नहीं थे जब वो 100 करोड़ का लोन ले रहा था. उसने 100 करोड़ का लोन लिया, उसने एक बिजनेस सेटअप किया, नहीं चला, फिर उसने 100 करोड़ का लोन लिया उस बिजनेस को सस्टेन करने के लिए. तब भी उसे रोका जा सकता था, पर तब भी उसने 100 करोड़ में से 10 करोड़ उसने खिला दिया लोगों को, तो फिर उसको लोन मिल गया. और ये 4-5 बार हो गया. अभी भी नीरव मोदी का बैड इंटेंशन नहीं था, वो तो बिजनेस चलाना चाह रहा है. या कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट का जो इतना सारा पैसा लेता है उसका बैड इंटेंशन नहीं होता. जैसे मैंने भी फंड्स उठाया है इन्वेस्टर्स से, हाँ मैंने बहुत थोड़ा सा, मैंने 100 रुपए उठाया है, पर मेरा बैड इंटेंशन नहीं है. और कोई 100 करोड़ उठा रहा है उसका भी बैड इंटेंशन नहीं है. लेकिन आपका बिजनेस नहीं चला. एक मिनट हरी जी, मैं बस कंप्लीट कर लूं. तो हुआ क्या कि उस बंदे ने 5,000 करोड़ या जितने भी करोड़ लोन उठा लिया, जिसमें सब लोग का भागीदारी था, और बिजनेस नहीं चल पाया. He has only two options, either to run away or have the same fate what CCG founder had. तो या तो मर जाओ, आत्महत्या कर लो, या फिर आप वो पैसा, या फिर आप पैसा तो चुका नहीं सकता है 5,000 करोड़, तो आप भाग गए. तो उसने उसे भागने वाला बेटर ऑप्शन लगा rather than committing suicide. तो this is what I have to say. Yes, sir. Yes, actually थोड़ा डिटेल में अगर जाए तो नीरव मोदी का जो ये मतलब मैंने जनरली बोला, आई हैव नॉट स्पोकन अबाउट नीरव मोदी. हाँ, मैंने जनरल बोला. विजय माल्या भी वही बोलते हैं कि it is because of the loss that he had. So चलो there are many people कि लोन उठा लो to spend, just give an example general कि people, businessmen will take loan, they will spend, control नहीं होता है. जैसा अनिल have control on their own
financials और cash outflow. हर प्रोजेक्ट में करेंगे, एम्बिशियस एग्रेसिव मार्केटिंग करेंगे, एग्रेसिवली अप्रोच करेंगे, बट उसका आउटकम है उनको डिजायर्ड मिलता नहीं है, एंड दे हैव टू फेस द लॉस. देन जो लॉस भी होता है प्लस गवर्नमेंट लॉस, जो फाइनेंशियल बैंकिंग के लॉस होते हैं, उसमें उसके चक्कर में वो लोग फंस जाते हैं. कमिंग टू ब्राइबिंग, सो ठीक है, ब्राइबिंग होता है, बट not all of the employees are bribed. Just a few of them will be bribed, और वो तो निकल जाते हैं. Once they get their own percentage, they will get away from the system. They will join somewhere else. They will do something else. और नीरव मोदी का केस में तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि it is like because of his loss will be there, but I'm not sure because he registered most of the companies in the name of his own relatives. अभी अफ्रीका में उसकी एक कंपनी थी, that was in the name of his auntie and mamaji's, and वो कंपनी से वो डायमंड्स का ऑर्डर ले रहा है ऐसा दिखाएगा, एक्चुअल में डायमंड्स कहीं पे है ही नहीं. सो डायमंड्स या तो ऑलरेडी उसके पास में आ चुके हैं, बट दे आर जस्ट गिविंग फेक डॉक्यूमेंट्स and they are doing that scam. So definitely बैंक के employees भी involved होते हैं इसमें, then only ये सब चीज हो पाता है, क्योंकि बैंक has to approve, और बिना देखे कोई इतना बड़ा लोन अमाउंट अप्रूव कर रहा है, then God knows कि how much the public will believe in the banking system. कल को सब लोग उठ के बैंक में चले जाएंगे, बोलेंगे लॉकर तोड़ो, पैसा बाहर निकालो, हमें पैसा चाहिए. So that can be the situation. अभी still it is not clear who is the culprit. That's why अभी भी ये चल रहा है. So definitely I don't think कि 100% की लॉस की वजह से आप लोग means default हो रहे हो. If you are having loss, then there are many other options. जो लॉस होने से पहले, आपकी कंपनी बंद होने से पहले, you can approach the national company law appellate tribunal वगैरह, NCLAT में भी आपका केस डाल सकते हो आप लोग, and the banks will take the ownership of your company. तो ऐसा ये लोगों ने कभी नहीं किया, जबकि they kept on taking the money again and again from the banks. तो ये बहुत गलत चीज है, जहाँ पे रीपेमेंट कुछ भी नहीं है और you are just taking the money all the time. So it is very dangerous for the financial system of the country, any country. और नीरव मोदी ना सिर्फ इंडिया का फ्यूजिटिव है, he is wanted by American banks also, plus some European banks also. So almost तीन तरफ से वो फंस चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया में भी शायद उनका कोई उनको डिक्लेयर कर दिया है कि he is a fugitive. तो नीरव मोदी का केस काफी बुरी तरह फंस चुके हैं कि एक आदमी के पीछे अभी 3 देशों की सरकार लगी हुई है. और विजय माल्या इज समथिंग डिफरेंट. ही इज सेइंग कि आई फेस्ड पॉलिटिकल डॉग फाइट, जो पॉलिटिक्स खेलते थे उसके साथ में, उस वजह से उसका लॉस हुआ है, एंड दैट्स व्हाई ही इज डिफॉल्टेड द लोन अमाउंट. सो इट इज नॉट येट क्लियर because the government changed after that time. So कौन सी गवर्नमेंट अब लेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब चीजों का? There is no one, because so ultimately you are the one who have signed that papers. So Vijay Mallya signed the papers, that's why the bank has given the loan. Same way नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, उन्होंने भी वही सब किया है. So I think businessman should learn how to manage the risk, और इतना एग्रेसिवली लोन्स के भरोसे आपका बिजनेस नहीं चलाना चाहिए. दैट्स व्हाट आई फील. तो एक क्वेश्चन आता है, यस नहीं, तो वन क्वेश्चन कम्स कि प्रोबेबली ये जो लोन हुआ, जो भी साइन किया एक चीज है, बट लोन तो कंपनी के नाम पे निकला होगा, आई गेस पर्सनल नाम पे नहीं निकला होगा. तो किया कितने लोगों ने भरा, मतलब एंजॉय कितने लोगों ने किया वो पैसा? लेट्स से वी टॉक अबाउट 6000 करोड़ या व्हाटएवर. फंसा लेकिन एक इंसान लास्ट में. इज दिस फेयर?
think, Mr. Harry? No, खाया that सब thing. और डंडा एक को पड़ रहा है। नहीं खाया सभी ने, ये बात भी सही है, बट थिंग इज कि इफ अगर टॉप लेवल का मैनेजमेंट, इफ यू हैव द कंट्रोल, तो ऐसी चीजें नहीं होती है। बट आपने अगर खाने दिया नीचे वाले को, देन इसमें आपकी गलती है फिर। if you are owning a business, it is your responsibility कि people work as per your policies what you have designed or as per the in line with the government policies. तो ये चीज में अगर वैसा ही है कि आपने किसी को एग्जाम में पेन दे दिया, आपके पास एक ही पेन था और आप लिख नहीं पाए और आप फेल हो गए और वो पास हो गया तो इस टाइप से हो जाता है। नहीं तो ये तो आई थिंक यू आर टॉकिंग मोर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। तो अब जिन बैंक्स ने उन्हें लोन दिया उनको भी तो लेना हो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो बोले कि हाँ सारा गलती लोन लेने वाले का है, देने वाले कोई गलती नहीं है। उसने कोलैटरल जैसे रखा होगा, जैसे उस कोलैटरल का वैल्यूएशन हुआ नहीं होगा, तो जैसे ही डिफॉल्ट होना शुरू होता है, जैसे ही ये सब पकड़ में आता है, इमीडिएट या तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, जो बैंक के रिस्पॉन्सिबल एम्प्लॉइज होते हैं उनको अरेस्ट करते हैं, या तो फिर वो भाग जाते हैं देश छोड़ के। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दोनों तरफ है। तो मेन चीज बैंक ये वाले है कि भी जो कहीं ना पकड़ा कहीं, गया वही चोर होता है। हाँ सही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर है। तो बैंक वाले भी तो कहीं ना कहीं अपना सारा पल्ला झाड़ लिए ना कि मेरा तो कोई गलती ही नहीं था, मैं तो एक मासूम बच्चा था, इसने आया, ये आया, मुझे बेवकूफ बनाया और मेरे से 6,000 करोड़ ले गया, प्लीज मेरा पैसा दिलाओ। ये तो रो रहे हैं जो बैंक। इजंट दिस अ बिट नहीं अनफेयर? आपने भी तो दिया उनको। बैंक भी तो सर बैंक भी तो एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया ना। यू कैन नॉट ब्लेम बैंक में जो पर्टिकुलर एम्प्लॉयज थे जो करप्शन या वो चार्जेस थे, उनको भले ही हम ब्लेम कर सकते हैं, बट नॉट द एंड। तो इज लाइक जस्ट लाइक काफी लोग है, बैंक अल्टीमेटली जो इट्स ओन P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, NPA दिखाना होता है। सो डेफिनेटली बैंक एज अ कंपनी, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग तो वही बोलेंगे कि मेरा लॉस हो गया है, बिकॉज देरिंग फंडिंग वो देने के साइड में। सो अगर आप दे रहे हो तो दे एक्सपेक्ट रिटर्न विथ इंटरेस्ट। सो रिटर्न्स आ ही नहीं रहे, सो द सिस्टम इज लाइक दैट। banks will say one day that you boss you have defaulted, you have caused me loss। जैसे आपने किसी को उधारी दिया और उसने चुकाया नहीं, सो अल्टीमेटली तो यू विल से कि इसने मुझे फंसा दिया, मुझे पैसे नहीं लौटा रहा है अभी। द सेम थिंग इज देयर। हाँ सही बात है, बट ये आई थिंक जैसे अगर हम पर्सनल लेवल पे बात करते हैं तो अपना पर्सनल फंड से कुछ पैसे 1,000, 2,000, लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़, whatever, depending on our own capacity, I mean, with which we are comfortable, we usually help, let's say our friends, family या कोई है, कर दिया और उसने पैसा नहीं दिया। तो यहाँ तो भरोसा वाला भी चीज था कि मतलब ये रिलेशन में भरोसा हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मैंने इस पर भरोसा करके दिया और इसने नहीं दिया। यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होता है यूजुअली, सिक्योरिटी इज जस्ट द रिलेशन। तो अगर आपने किसी दोस्त को भी दिया 1 लाख, अब उसने बोला कि 1 महीने में देगा और 1 साल में लौटाया तो डिफॉल्ट तो किया है, लाइक सेमी डिफॉल्ट किया, बट वहाँ पे कोई था ना, कोई सिक्योरिटी नहीं लिया हमने। देयर वाज नो चेक काइंड ऑफ, और नो क्रेडिट चेक थिंग्स, इट वाज प्योरली ऑन द लीप ऑफ फेथ। ठीक है, तो इसको उससे कंपेयर करना विल नॉट बी सो फेयर, बिकॉज जब बैंक्स लोन देती है तो they don't give loan on relation as such. I mean, although they might be giving loan on relation, but they should not. Definitely correct, they should not. इसमें एक और पॉइंट है, जस्ट एक इन्फ्रेंस ऐसा आता है कि बैंक्स आर नॉट हैविंग एडिक्वेट चेक पॉइंट्स। उन्होंने एक बार लोन दे दिया, सपोज फॉर एग्जांपल ही विजय माल्या एट दैट टाइम और अमिताभ बच्चन, तो क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा दे के रखी है उनको। तो बैंक सोचता है कि इतना बड़ा आदमी मेरे से लोन लेगा
my bank will grow, so they will immediately give the loan. But ऐसा नहीं होता है कि they are not analyzing, because they are not analyzing the business or analyzing what where the funding is going, what is the guarantee that the businessman is giving, what is the collateral, what is that, all that चीज, वो सब चीजों का तो कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है बेसिकली. अगर वो होता तो आज ये सिचुएशन नहीं आती. सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम विद बैंक्स कि एक ही पर्सन जो बहुत अच्छा है, बहुत क्रेडिबल है, जिसके पास ऑलरेडी है सब कुछ, उसी को दोबारा से लोन दे देते हैं सब लोग. दैट्स व्हाट आई फील. आपका क्या लग रहा है सर, विशाल सर? नहीं तो मैं कल अपने वापस अपने क्लाइंट पे आता हूँ जो मैंने बोला था कि आप जितना पैसा खर्च करेंगे ना, आपको उतना लोन देने आएंगे. करेक्ट. प्लीज मेरे से भी ले लो, और पीछे आएंगे. और पीछे आएंगे, क्योंकि यस, पैसा उसी को दिया जाता है जो खर्च करता है. ठीक है, उसको उसी से इंटरेस्ट कमाया जा सकता है, उसी से आपका कैश फ्लो मेंटेन होगा, उसी से आपको इट्स लाइक सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. आई मीन ऑल द मनी इंस्टीट्यूशन, ये वो जो भी है, दे ऑल नीड टू सी अ सर्कुलेशन. उसी सर्कुलेशन में अगर वो पॉजिटिव सर्कुलेशन में पॉजिटिव कैश फ्लो होता है, तो वो पॉजिटिव उनका लड्डू का चूरा उनके हाथ में आता है, और उसी से वो लोग सैलरी देते हैं, खाते पीते हैं, बोनस बांटते हैं, जो भी करते हैं. अगर वो सर्कुलेशन बंद हो गया, तो वो जो चिल्लर आने वाला स्कोप है वो भी खत्म हो जाता है. तो एक्चुअली दिस इन दिस कोविड टाइम, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड. द मनी हैज प्रीटी मच स्टॉप्ड फ्लोइंग. तो जिनके पास जो है जैसा है, money is flowing in, like, you know, let's say you can say if a body part only in certain organs right now like you know, grocery and all. बाकी सारे organs जो है body के, वो blood deprive हो गए या circulation deprive हो गए at least. ठीक है, उनका outway में भी हो रहा है, but inward कुछ नहीं हो रहा है. तो ये हो गया problem. So this is where things are. Saurav wants to add something. Yes, Saurav, please. देखिए, मैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बोलता हूँ कि आपको समझना पड़ेगा कि बैंक के कितने सारे सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट चल रहे हैं. तो वो इतना पैसा फ्लोट मेंटेन करके कर क्या रहा है? दे हैव टू इन्वेस्ट समवेयर. तो इन्वेस्ट वो करता है लोन देकर, ये तो उनका बिजनेस है. तो उनके जो फंड मैनेजर्स हैं, उनको टारगेट दिया हुआ है कि तुम्हें 5,000 का लोन देना है इस साल. तो दे हैव टू फाइंड वन नीरव मोदी. अब नीरव मोदी अनफॉर्चुनेटली फ्रॉड निकल गया. अगर किसी दूसरे को देते, गौरव मोदी को देते, गौरव मोदी हो सकता है अच्छा निकलता. सो ये तो चांस है, लेकिन बैंक को तो देना ही है. दे हैव सर्टेन टारगेट्स व्हिच दे हैव टू मीट. दिस इज व्हाट आई हैव टू से. श्योर दैट्स ट्रू. टारगेट है, देना है. तो ये अगर हम एक एंटरप्रेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझें, लेट्स फॉरगेट दिस लोन डिफॉल्टर्स. लेट्स जस्ट assume you know, we are running a company, we are a founder of a company, and we have given टारगेट्स टू आवर सेल पर्सन. इतने का सेल साल में मुझे चाहिए, या दो लोग हैं, या लेट्स अज्यूम, लेट्स मेक इट अ स्टोरी ऑफ टू पीपल, बोथ हैव सेम टारगेट. सॉरी विशाल मैं कट ऑफ हो गया था. डिड यू गाइस हियर व्हाट आई सेड? या सो आई एम जस्ट गिविंग अ लाइक अ स्टोरी ऑफ टू पीपल हु आर गिवन सेल्स टारगेट कि आपको लेट्स से 10,000 का या 10 लाख का सेल करना है, दोनों को करना है. एक ने मतलब जहां तक हो सके एथिकली किया, 10 लाख का नहीं किया, 9 लाख का किया या 8 लाख का किया, मतलब ही कुडंट अचीव द टारगेट. एक ने यू नो बाय हुक बाय क्रूक, यू नो, कैसे भी करके सेल टारगेट अचीव कर लिया, और मे बी ओवर अचीव भी कर लिया. तो एज अ फाउंडर, लेट्स से, whom should I mean give more credit? जिसने एथिकली सब कुछ किया, या जिसने थोड़ा अनएथिकली भी यूज किया बट टारगेट कंप्लीट कर लिया? सो मे बी यू कैन ओनली आंसर दिस. देखिए सर, मैं एक चीज तो आपको बता दूं, सेल्स और एथिक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड. बीइंग अ सेल्स पर्सन, आई कैन मतलब मैं बहुत फ्रैंकली आपको बता रहा हूँ, सेल्स ऐसे नहीं होता है कि आपने बोल दिया भाई सब चीज गुड है तो सेल्स हो जाएगा. मतलब सॉरी, रियलिटी कुछ और होती है और पिच कुछ और होता है. तो मैंने ऑनेस्ट ओपिनियन अपना दे दिया. ठीक है, नहीं ठीक है, मैं समझ गया वो, बट स्टिल देयर वुड बी. मुझे अगर मुझसे पूछा जाए मुझे कौन चाहिए,
तो मुझे वही चाहिए, पहला वाला, जो जो टारगेट जैसे अचीव करेगा, ओवर अचीव करेगा, जैसे भी करे, क्योंकि जो दूसरा वाला बंदा ना गुड बॉय, वो टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। अच्छा, कभी नहीं कर तो पाएगा। नहीं कर पाएगा, नेवर। ओके, ठीक है। तो इस पे लेट्स हियर फ्रॉम अदर। नंदन, व्हाट डू यू थिंक? Sir, can you please explain Yeah, in so English? I'll explain actually. Target, achieving the target is important, or achieving the target ethically or maybe a little underachievement is preferred by you, let's say. And you have given an example of 10 lakhs. Yeah, so sales target of 10 lakhs, two people, one achieved, one didn't achieve, but the one who didn't achieve Okay. was more honest guy, let's say, and the other one Okay. was a bit con man kind of thing. Sir, if at all that honest man could do a 20% or 30%, I would keep that honest person, because a tag is there for that. And you are telling that he is an honest person and other one is a not honest person. As a probability, the honest person is 50 above and non-honest person is a 50 below. I would prefer an honest person. It's a small logical thing, like we are going to travel with them our entire life, we think so, and after our life our companies would be there and they could be and managing in it. We from the beginning it would be a nice thing with a honest person only. सर कंपनी बंद हो जाएगी तो ऑनेस्टी का लेकर क्या करिएगा? टारगेट ही अचीव नहीं हुआ। Yeah, so Nandan is saying that Sir, okay, as in basic first approach of 10 lakhs and 10 lakhs, if he would achieve on 40% also, if from an honest person I could think of his future, like he would gain some more in the next target. It's a not like an ending point, it's a beginning point I'm explaining. yeah, so let me just get this into a bit detail. So what Nandan is trying to say that if the person becomes dishonest with somebody, there is a fair chance that that person can become dishonest with his or her own boss also, or with anybody for that matter. So यहाँ पे थोड़ा सा तो there is a bit of a trust and things are एक एग्जांपल सिंपल लेते हैं कि किसी पेरेंट ने अपने बच्चे को झूठ बोलना सिखाया, वो बच्चा पेरेंट से ही झूठ बोलता है. So can the parent complain that why are you lying to me? Because they only taught the person to lie, right? Yes, sir. Please. विशाल, मैं डिसऑनेस्टी की बात नहीं कर रहा हूँ. मुझे डिसऑनेस्ट लोग मुझे भी नहीं चाहिए कंपनी में. व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि एथिक्स एंड सेल्स डजंट गो हैंड इन हैंड. इसका मतलब थोड़ा सा आटे में नमक मिलाना पड़ता है. आई एम नॉट सेइंग कि नमक ज्यादा हो जाए और आटा कम हो जाए, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ, बट मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% सच बोल के सेल्स नहीं होता है. चाहे वो बड़े से बड़े, चाहे वो टाटा स्काई हो जो बहुत अच्छा सर्विस देता है, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो जियो हो या कुछ भी हो. सर आई कुड चीटिंग तो फेसबुक भी कर रहा है, चीटिंग तो टिकटॉक भी कर रहा है, तो फिर वो लोग तो इतने बड़े $1 बिलियन कंपनीज हैं. तो वही मैं आपको बता रहा हूँ. Sir, can I explain once? As if an salesperson is selling a product of my product, of our product, if he's unethical with the rules and regulations of my company, he's ruining my company. If at all the customer is going to ruin my company, like he or she is going to sue a case in the law, if at all the salesperson is ruining any other laws or other type of things as a non-negative thing, it could be an option. Yeah. Yes, Aman, please. सर इसमें ऐड ये करना चाहूंगा, लाइक मेरा भी था सौरभ सर के जैसा ही पॉइंट है कि कंपनीज को लास्ट में मोस्टली आपका सेल्स पे ही डिपेंड होना पड़ता है कि आखिर आपकी एथिक्स किसी को कुछ मतलब नहीं होती. लाइक मैंने स्टार्टिंग जब सेल्स में मुझे उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है, बट मैं सेल्स नहीं करना चाहता था, ठीक है, बट मैंने थर्ड ईयर लाइक अभी लॉकडाउन के पहले सोचा कि सेल्स करते हैं, लाइक इसमें
एथिक्स का आप लाते हो ना तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। बट और मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर स्टार्टिंग में मैंने कोर्स बेचना स्टार्ट किया, और उसके बाद मैंने टाइल्स की कंपनी थी उसके साथ इंटर्न किया, तो उसके में सेल्स किया पूरा का पूरा। तो मुझे तो प्रोडक्ट भी नहीं पता था क्या प्रोडक्ट है, इसका क्या देने वाला है। हाँ, कंपनी ने मुझे बस ये बताया था कि ऐसी ऐसी चीज हम लोग ये करते हैं, और फिर मैंने उसी पे पूरा कहानी करके पूरा का पूरा उसका सेल्स कर दिया, पूरा जितना भी मुझसे हो पाया। और मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे काफी अच्छा वहाँ पे किया था, तभी मतलब दोनों जगह से अप्रिशिएशन मिला था कि काफी सही जा रहा है। तो और एथिक्स का ऐसा होता है कि हर एक चीज आपको कहीं भी जाओ ना, फ्री में कोई चीज नहीं मिलने वाली कि आपको बोल दिया कि 100% ये देंगे, आशीर्वाद आटा बोलते हैं या फिर कुछ भी बोलते हैं, उसमें 100% नहीं होता कोई भी चीज। लाइक मैंने बोला कि मैं कोर्स दूंगा 20 कोर्स रोज दिन दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, बट लास्ट में आपका वही मैटर करता है कि लाइक अगर आप 10 भी दे रहे हो तो लोग आपसे कोई ये कंप्लेन नहीं करेंगे कि हाँ आपने ऐसा बोला था फिर ऐसा क्यों। आप बिल्कुल नहीं दोगे ना, तब वहां पे एथिक्स आई थिंक प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आप 10 भी दे रहे हो ना, 15 भी दे रहे हो, तो लोग विल बी सेटिस्फाइड विथ योर दैट कि हाँ मिल रहा है, और ये तो थोड़ा मोड़ा होता ही है, ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं। अगर एथिक्स बोलोगे ना, अगर आपने देखा अच्छा कंपनी दे ही नहीं रही 5 दे रही, फिर आप वो चीज करके जाओगे ना, वो चीज नहीं होगा। लास्ट में वही मैटर करता है कि आपने क्या सक्सेस पाई, क्या अचीवमेंट पाया, लास्ट में मैटर। लाइक पढ़ाई भी हो या फिर आपको रिजल्ट मैटर करता है, या फिर आप क्या बनते हो आगे चल के वो मैटर करता है। क्या फेलियर से वो चीज आपको उतनी नहीं रिक्वेस्ट शो करता है आपका। चलिए प्लीज। सर मान लो आप ऑनेस्ट भी हो, एथिकल भी हो, सब हो, पर इस मार्केट में कैसे एग्जिस्ट करोगे? मार्केट तो ना ऑनेस्ट है ना एथिकल है। तो और सर मोस्टली जो डिसऑनेस्ट टू द मार्केट होते हैं, वो अपने जो एम्प्लॉयर है उनसे सबसे ज्यादा लॉयल होते हैं। क्योंकि आप मार्केट से यस सर ठीक है, आते हैं। नहीं सेजल कंप्लीट कर लो। सेजल कंप्लीट कर लिया था शायद। कंप्लीट रुको मत, रुकने से ना आई थिंक कि तुमने कंप्लीट कर लिया है, बोलते चले जाओ। देखो जब कंट्री मैनेजर ने वर्डिक्ट दे दिया कि कि पूरा इंडिया अनएथिकल है, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए अभी आते हैं, घुमाते हैं उसको थोड़ा सा। यस सेजल, हाँ थोड़ा सा प्लीज। सर तो मेरे हिसाब से मार्केट में एथिक्स नहीं चलते, और जो डिसऑनेस्ट वैसे होते हैं इनटू द मार्केट, वो अपने एम्प्लॉयर के ऑनेस्ट। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि उन्हें पता है कि पैसे वहीं से मिलने वाले हैं। आई मीन एट अ वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, चोर आपस में लॉयल हो जाते हैं, बट बाकी लोगों के लिए वो जो भी है मतलब चोर हो जाते हैं। ऐसा कुछ। सर उसे भी पता है उससे सैलरी उसकी सेल्स से मिलने वाली है, तो वो क्यों खेलेगा? आई मीन लाइक वेरी ठीक है, जनरल अपना व्यूज है, डिस्कशन कर रहे हैं। सेल्स से ही सैलरी। यस करेक्ट, सही बात है। यस सर प्लीज। मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ, उससे ना प्रूव हो जाएगा और डिस्कशन एंड हो जाएगा। मेरे पास एक इन्वेस्टर आता है और बोलता है कि मेरे को क्लियर देखो का फ्रेंचाइजी बेचना है। हमारा फ्रेंचाइजी 11.5 लाख का है, विशाल को ही बेचना है। तो मैंने विशाल को पूरा पिच कर दिया, विशाल एकदम खुश हो गया, विशाल के पास पैसा भी है। फिर विशाल ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, सौरभ लेंसकार्ट कैसा है यार? तो क्या मेरा जवाब, मैं 2 जवाब दूंगा और विशाल आप बताना कि एज अ सेल्स पर्सन मुझे क्या बोलना चाहिए। विशाल जी लेंसकार्ट तो क्लियर देखो से भी अच्छा है, आपको बहुत रिटर्न देगा, बहुत प्रॉफिट्स देगा, आप लेंसकार्ट ले लो। नहीं सॉरी, लेंसकार्ट बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत सारा प्रॉफिट देगा, लेकिन प्लीज मैं थोड़ा कम प्रॉफिट दूंगा, आप प्लीज मेरा क्लियर देखो ले लो। या तो मैं ऐसे बोल दूं, जिसे बोलते हैं सच बोलना, या फिर मैं ऐसे बोल दूं, देखो यार लेंसकार्ट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन क्लियर देखो इस टाइम पे नंबर 1 चल रहा है और आपको बहुत अच्छा आरओआई देगा। लेंसकार्ट में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, रिटर्न उतना अच्छा नहीं है। क्लियर देखो का 1/4 इन्वेस्टमेंट है और रिटर्न डबल है। तो विशाल आप क्या लेंगे? मतलब मेरा जवाब क्या होना चाहिए एज अ सेल्स पर्सन? सेकंड वाला ही होना चाहिए, ठीक है बस। तो विशाल मैं अकाउंट नंबर दे दूंगा आपको, आप प्लीज पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। नहीं तो क्वेश्चन ये है
कि तो मैं बस एथिक्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरे की बुराई कर रहे हैं या आप, मैं बस आपको बोल रहा हूँ थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के बोलना पड़ता है। हाँ ठीक क्योंकि है, ठीक जैसा सेजल ने भी कहा कि चलो मैं एथिकल हो जाता हूँ, भाई दुनिया तो अनएथिकल है ना। लेंसकार्ट तो ये बोल रहा है ना कि भाई क्लियर देखो बेकार है और लेंसकार्ट अच्छा है, तो बोलना पड़ेगा ना क्लियर देखो को भी थोड़ा सा। मैं बस करेक्ट इतना करेक्ट। बोलना चाह रहा हूँ। मैं हाँ चीटिंग की नहीं बात नहीं, मैं नहीं कर समझ रहा। गया। मैं इसको एक दूसरे एग्जांपल से भी बताता हूँ कि लेट्स से एक प्रोडक्ट का वैल्यू या रेटिंग 5/10 है या 6/10, या ये एक नंबर है 6, बट मुझे इसका मार्केटिंग करना है नंबर 6 का। तो मैं दुनिया को बोलूंगा 7 बोलूंगा, 8 बोलूंगा, 9 बोलूंगा, 10 बोलूंगा, ऐसा कुछ बोलूंगा, या 12 बोलूंगा, ऐसा कुछ बोलूंगा। ठीक है, या 10 मानते हैं, 10 को मैं 15 बोल दूंगा, 20 बोल दूंगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10 को 100 बोल देंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो 10 को 1000 बोलेंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे 10 को 1,00,000 बोल देंगे। राइट? अब सौरभ, तुम्ही से स्टार्ट करते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि ये एथिक्स का बाउंड्री कहाँ खत्म होता है? आई थिंक दिस विल बी अ वेरी पर्सनल चॉइस कि 10 को क्या बोलना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। आपने बिल्कुल सही बोला, यू आर बैंग ऑन। ये पर्सनल चॉइस है, वो तो सेल्स कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि मैं अगर 10 को 10 बोलूंगा मैं सेल्स कर दूंगा, किसी और को लगेगा कि मैं 10 को 15 बोलूंगा तब जाके वो सेल्स कर पाएगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं करता हूँ। मैं एक टाइम पे 10 को 12 करता था, 13 करता था, 15 भी करता था। इस टाइम पे मैं 10 को ना 9 कर देता हूँ, तब भी सेल्स हो जाता है, या 10 को 10 कर देता हूँ। क्योंकि सेल्स होने के लिए पिच प्लेज अ पार्ट initially, but after a certain period of time your reputation and your individual's brand value plays a part. For example, अगर आज मैं कुछ बोलता हूं तो लोग मेरे बात पे वैल्यू करते हैं, तो चाहे मैं झूठ भी बोल रहा हूँ तो लोग सच मान लेंगे उसको। लेकिन मेरे स्टेक्स इतने हाई है कि मैं इस टाइम पे 60 स्टोर खोलने के बाद मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हो सकता है पहले 10 स्टोर पे मैं झूठ बोलता था, अब मैं नहीं बोल सकता हूँ बिकॉज सब कुछ पब्लिक है। सो इसीलिए तो इस टाइम पे मैं 10 को 10 रखता हूं, लेकिन सेल्स तब भी हो जाता है। हो सकता है मेरा जो मेरा सेल्स हेड है, हो सकता है वो 10 को 12 करता हो, पर तो ये इंडिविजुअल चॉइस है जैसा आपने बोला, एंड इट डिपेंड्स ऑन द सेल्स कैपेबिलिटी। श्योर। तो वही, तो इसमें मैं ये बोलूंगा, अब मैं अपना टेक देता हूँ कि अब आउट ऑफ 100 है, लेट्स से 70 को मैंने 80 बोला, 90 बोला, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये मार्केटिंग है। मतलब ठीक है, थोड़ा सा बोलना पड़ेगा आपको। अगर आपने थोड़ा भी नहीं बोला तो फिर आप मतलब जो अभी हम लोग बात कर रहे थे एथिकल वाला चीज, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं लाइक मैं ये हूँ वो हूँ, इस टाइप से। क्योंकि कुछ नहीं, अब अगर हर चीज सच बोलेंगे या हर चीज बुराई वाला भी चीज बता देंगे तब कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो नाउ फिर यही है कि मेरा खुद का अगर बिलीव है कि मैं 10 को या 60 को 70 बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं आई विल लुक डाउन ऑन पीपल जो 1 को 100 बोलते हैं या 10 को 100 बोलते हैं। कहीं ना कहीं मैं मेरा ये नेचर होगा क्योंकि मैं बस 70 को 80 बोलता हूँ ना, 10 पॉइंट ही बढ़ाता हूँ, तो ये मेरा नेचर है। बट समहाउ आई प्रोजेक्ट दिस नेचर ऑन द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट ऐसे ही होना चाहिए, इतना ही एथिकल है। ठीक है, बट ऐसे भी लोग होंगे जो हो ना 70 को 70 ही बोलते होंगे या 71 बोलते होंगे, कुछ नहीं हो पाया उनका, वटेवर, कंपनी बंद हो गई एक्सेट्रा वटेवर, बट उनका वो रूल था या उन्होंने फॉलो किया या जो भी था। ठीक है, और मैंने बोला कि नहीं इसको 80 तक बोलना चाहिए अब, बट तो 70 से 80 बोलने वाले लोग सारे जितने हैं मैं सबका इज्जत करूंगा, और मैं भी थोड़ा ऊपर तक भी इज्जत करूंगा, 70 को 90 बोलने वाले तक का भी इज्जत करूंगा। बट मैं उसका इज्जत नहीं कर पाऊंगा जो एक का 100 बोल दिया। तो जैसा कि हम लोगों ने बोला, तो बेईमान तो सब है। अब विजय माल्या 6,000 करोड़ लेके जब भागा तो हमें तीता इसलिए लगा कि हम नहीं भाग पाए। इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? यस मिस्टर रवि प्लीज। हेलो रवि जी हाथ उठा। यस रवि। अच्छा रवि रवि देन हरी जी। तो सॉरी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया हूँ आज, बहुत इनका विशाल इनका पेनल्टी होना चाहिए। करेंगे वो भी। अभी अभी मेरा जब 10 का 10 बोलने का टाइम आ जाएगा ना तब पेनल्टी डालेंगे। यस रवि प्लीज। तो मेरा पॉइंट ये है, जो अभी डिस्कशंस में सुना हूँ, शायद से क्वेश्चन है कि एथिकल का क्या डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ सेल्स। ठीक है, यस, नहीं मतलब बेसिकली हम लोग डिफॉल्टर पे बात कर रहे थे, तो अच्छा। मैं वहां से एथिक्स पे आया थोड़ा सा। तो द होल स्टोरी गोज अराउंड कि अगर विजय माल्या 6,000 करोड़ लेके भागा तो आम जनता को इतना खराब क्यों लगा? आखिर वो नहीं भाग पाए इसलिए खराब लगा, या
मतलब उन्होंने गबन जो किया वो 100-200 रुपए तक ही रह गए और उसमें 6,000 करोड़ का बायबैक कर दिया, इसलिए खराब लगा या कोई और रीजन है? यस रवि प्लीज, आई मीन एंड देन यू कैन ऐड द सेल्स थिंग आल्सो। हम लोग ये वाला डिस्कशन एक दिन और किए थे। सो एथिकलिटी का जहां तक मतलब संदर्भ है या फिर द पॉइंट व्हिच कम्स इन एथिकल, इट इज मोर ऑफ इंटेंट और इंटेंशन से रिलेटेड रहता है। अ पर्सन कैन बी एथिकल अ पॉइंट एंड ही बिकम अनएथिकल एट अदर पॉइंट, हो सकता है केसेस ये भी होता है कि अ पर्सन हु इज मोस्ट अनएथिकल विल बी प्रूवन एथिकल एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जो कि कोर्ट्स में होता है। अगर आप सेल्स की बात कर रहे हैं तो इमेजिन हाउ थिंग्स गोज इन कोर्ट्स। वहां पे तो चीजें लॉफुल होती है बट नथिंग हैपेंस एथिकल। जो मे बी प्रोसिक्यूशंस का जो पॉइंट रहता है, स्टेटमेंट्स रहता है किसी केस को लेके, प्रूवमेंट्स को लेके, और चीजों को जैसे मलाइन और मैनिपुलेट किया जाता है, ऑल थिंग्स आर अनएथिकल, लेकिन थिंग्स इज हैपनिंग अंडर लॉ, सो पीपल कंसिडर इट एज एथिकल। एक ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो सौरभ ने बात बोली कि व्हेन यू मेकिंग योर सेल्स पिच इन्फ्लेट हो सकता है कितना भी। लेट्स से आई एम टॉकिंग टू माय इन्वेस्टर्स, मेरे पास आज मेरा प्रोडक्ट है लेकिन मेरा रेवेन्यू 0 है, लेकिन जब मैं इन्वेस्टर को पिच करता हूं तो मैं रेवेन्यू का ऑलमोस्ट इन अ ईयर एक रेवेन्यू प्रोजेक्ट करता हूं। वो प्रोजेक्शंस है नहीं, वैलिडिटी नहीं है उसका। तो वो अगर इसको आप गलत बोल रहे हैं कि 10 को मैं 15 बता दूं या 10 को मैं 100 बता दूं, तो वो भी फिर गलत हो जाएगा ना। कि आप जो भी प्रोजेक्शन सेल का प्रोजेक्ट कर रहे हैं विच इज नॉट इन ट्रू सेंस ट्रू, पर अंडर योर कैपेबिलिटी रिसोर्सेस, और हाँ आप ये बोल रहे हैं कि आई विल डेवलप दैट, लेकिन वो नहीं भी, जितना चांसेस उसका होने का है उतना ही चांसेस नहीं होने का भी। So ethical things with respect to sales pitch, I don't think is go tete on tete till the times it is not going to hamper someone's intent, behavior or existence. Abhi unethical, if I say in my point of view how sales goes unethical, let's say pharma industry, okay, as a salesman I am not knowing what I am selling, which I am selling, it is going to take the lives of somebody, or it is going to manipulate the existing body of somebody. But I am not aware of that fact. But I have a product in my bag which I am selling it in the right way. I am going meeting my doctors, I am projecting to the doctors, telling the truth which I know, preferably which I know. The company which has given me the informations, which has not given me, I am not aware of. And I sold that things to doctor, and doctor prescribe it to the patients, and the effect comes in as patients got some people get a lot of disease, or maybe death cases arises, and then scrutiny happens and people get caught and things become unethical thereafter. So in this case, salesman is not unethical, he is doing very good in terms of his job, he is doing his job. Now unethical thing is the top management or the persons who has designing it, who somehow undergone with compromise his intentions or intent in developing it and then rolling it to the market. So this is the point. Sales pitch मुझे नहीं लगता कि कभी भी unethical होता है till the times you keep your jobs intact in terms of relationship or behavior or information. क्योंकि बहुत सारे pitch ऐसे भी होते हैं जहां पे आप information ही half share करते हैं, full share नहीं। Especially the study we were talking about the financial products में most of the times 90% time you will feel like information जो है accurately पूरा share नहीं करते customer के साथ में। और इस केस में जो frontline sale होता है इंश्योरेंस में, maybe he is not aware of, उसके कारण भी नहीं information share होते हैं। The guy who sits in call centers who talk about lead generations about the product, उनको पता नहीं रहता है कि what they are talking of। उनके पास एक राइट अप स्क्रिप्ट रहता है and they read about that script, वो मगअप करके and they say to the customers and on the basis of which customers take a decision। तो इसमें वो जो बंदा कॉल सेंटर में बैठा हुआ है, इसमें उसका कोई अनएथिकल बिहेवियर we cannot say or we cannot prove it। The person who is designing it, yes there might be,
तो ये इंटेंट और इंटेंशंस पे सेल्स पिच में डिफर करता है. दिस इज माय पॉइंट. Yes, sir. You have some comment. Sejal, are you not able to raise your hand? उसमें. ठीक है. Saurabh first. Yeah. Then Sejal can add. And then Hari ji also can add. Yes, sir. Saurabh, please. मैंने बहुत पहले हाथ खड़ा किया था विशाल. हाँ ठीक है. Saurabh. मैं I'll come back to this. I'll come back to my point. Okay. Sejal, yes. सर मुझे पिच का तो नहीं पता क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है उसका, बट जो मेरा सेल्स में एक्सपीरियंस है तो डिपेंड करता है कि आप सच कैसे बोलते हो और कितना बोलते हो. फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट मार्केट में सबसे बेस्ट है आफ्टर पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अभी आफ्टर पर्टिकुलर प्रोडक्ट में नहीं बोलती हूँ और सिर्फ इतना बोलती हूँ तो मैंने सच ही बोला है और आधा सच बोला है, वो भी काफी होता है सेल्स करने के लिए. मतलब मेरा ये व्यू है. तो आप सच कितना बोलते हो और कैसे बोलते हो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है सेल्स में. Sure. Mr. Hari. यस, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक्चुअली जो सेजल का एक पॉइंट था कि मार्केट इज नॉट ऑनेस्ट, तो आई थिंक इट इज व्हाट यू सी, व्हाट द स्पेक्स यू आर वेयरिंग, द मार्केट विल look like that only. So अगर आपने काले चश्मे पहने हैं, so you will feel everyone is gadbad in the market, everyone is dishonest. And if you are like confident, and if you know what your product is, what are your plus points, so I feel sales becomes much more easier, much transparent, and ethical. और coming to ethical and non-ethical, I feel कि मैंने पहले भी बोला था कि if you want the customer to come again or you want the long-lasting relation, you must have empathy towards him. You must आपको ऐसे treat करना है कि as if you are going to buy that product, how you would love that product to be bought. In the same way, you just sell that product. Am I making some sense? Yeah, sure. So, yeah, I just want to complete it. So, in that case, I feel the sales journey becomes much smoother, और जो relationship है वो much maintained रहेगा. और coming to Saurabh's point, where Saurabh said कि मेरा brand value of a person drives the sale. Yeah, definitely it can drive the sale, but वहाँ पे when things go wrong, it affects the brand value. So शाहरुख खान ने IIPM को promote किया. Definitely IIPM is a fake company, but Shah Rukh Khan was a very big brand. Still he has promoted the fake company, fake education thing. But still Shah Rukh Khan also got affected. Shah Rukh Khan के ऊपर भी legal case हो गया कि he misguided the public. And in the same way, आप जितने बड़े हो, rightly said by Saurabh कि stake अगर आपका ज़्यादा है, so you cannot really like fake or lie something while selling a product. It is not possible for them, or it is not ethical, and it doesn't looks good when a reality comes in picture. Atul sir, please. Atul sir, Sejal, then Saurabh. Yes. तो एक छोटी सी कहानी है which might be able to help. पहले भी शायद सुनाया था. एक जंगल में एक साधु जंगल में कुछ डकैत लोग किसी का पीछा कर रहे थे, मारने वाले थे, गोली बंदूक भी था या तलवार था उनके पास. तो भागते भागते एक मंदिर के पास पहुंचे. पुजारी जी बाएं चबूतरे पे बैठे हुए थे और पुजारी जी ने उनको इशारा किया कि अंदर जाके छुप जाओ. फिर उसके बाद पुजारी जी उठकर दाएं वाले चबूतरे पे बैठ गए. फिर जब पीछा करते वाले जो डकैत लोग थे आए, उन्होंने पूछा पुजारी जी से कि कोई पुजारी आपने किसी को आते यहाँ देखा है क्या?
तो पुजारी जी ने बोला कि मैं जब से बैठा हूँ इस चबूतरे पे तो किसी को नहीं देखा। तो पुजारी जी ने झूठ नहीं बोला, सच बोला। जब इस चबूतरा ही बदल गया उन्होंने, तो उस चबूतरे बैठे तो नहीं आया था, लेकिन बचा भी लिया जान और झूठ भी नहीं बोला, प्रैक्टिकली सच बोला उन्होंने। तो वही चीज सेल्स एंड मार्केटिंग में भी है कि बहुत बार बिना झूठ बोले भी कंपनी अपना पर्पस अचीव कर लेते, उठ के बैठ सकते हैं। उसको मैं उठ के बैठना बोलता हूँ कि आपने प्रॉमिस किया कुछ और, डिलीवर कर रहे हैं कुछ और कानूनी तौर से आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता कि आपने धोखा दिया, क्योंकि अभी मीटिंग ऑल द जो प्रॉमिसेस किए थे। तो ये जो ठगने वाला जो बिजनेस है ना, ये बहुत ज्यादा होता है सेल्स में। ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर करते हैं और उठ के बैठ लेते हैं बहुत सारी कंपनीज, और कस्टमर्स को पता नहीं होता है कि इतने सारे नीचे में छोटे छोटे सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ आपका ये कंप्यूटर या आपकी कार खराब हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं है, तो उसके चलते बाद में जब आप रिपोर्ट करने जाओगे कि कंपनी के वारंटी और गारंटी में मुझे कवर्ड होना चाहिए था, लेकिन कंपनी बाद बोली नहीं आपने वो पढ़ा नहीं वो क्लॉज, नीचे से निकाल के दिखा देंगे कि देखिए उस क्लॉज में लिखा हुआ था कि हम इसको कवर नहीं करते हैं। तो यही उठ के बैठना वाला काम मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए, थोड़ा अनएथिकल है। दैट्स ऑल आई वांट टू से। सेजल प्लीज। सर मैं हरीश सर को आंसर करना चाहूंगी उनके फर्स्ट क्वेश्चन पे। द स्ट्रेट ट्रीज आर चूजन फर्स्ट टू कट, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी। एंड ऑन सेकंड थिंग सर, अगर हम जो क्या बोलते हैं सेलर्स हैं, अगर वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे तो नेस्ले में कभी केमिकल नहीं मिलता, जो मिठाइयों में माल न्यूट्रिशन होता है वो कभी नहीं हो रहा होता, अल्कोहल की शॉप्स ही नहीं होती, और ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते, काफी सारे बिजनेस बंद होते हैं। तो मेरा बस यही से है। यस सर। आज तो मैं सेजल की काफी बातों से एग्री कर रहा हूँ। ओके, तो मेरा पॉइंट 2-3 है। पहले तो मैं हरी जी को काउंटर करूंगा। उन्होंने बोला कि अगर वो इस तरीके से करेंगे तो सेल्स बहुत स्मूथ हो जाएगा। मैं डायरेक्ट उनके फेस से बोल रहा हूँ, आई डोंट नो इफ ही हैज डन सेल्स और नॉट, बट सेल्स स्मूथ कभी नहीं होता है, चाहे आप एयरटेल के सेल्स हेड हो, चाहे आप क्लियर देखो के हो, चाहे आप एक लोकल स्टार्टअप के हो। सेल्स इज ऑलवेज टफ बिकॉज टारगेट्स आर ऑलवेज अनअचीवेबल। तो सेल्स इज नेवर इजी। दूसरा पॉइंट में सेजल से बिल्कुल अग्री करता हूँ, जो उसने बोला कि अगर अनएथिकल तो होना पड़ेगा, और जैसे उन्होंने जो प्रोडक्ट्स के एग्जांपल दिए, लिकर ही नहीं होता, सिगरेट ही नहीं होता, अगर वो वाले चीज में हम जाएंगे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तब तो फिर इंडियन इकोनॉमी जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम सेल्स वालों को इतना अनएथिकल बोल रहे हैं, मैं तो बोल रहा हूँ नॉन सेल्स वाले भी अनएथिकल होते हैं, वो अब मैं प्रूव करता हूँ। मैं एज ए एम्प्लॉयर बोल रहा हूँ, आप एम्प्लॉय का काम है अपना 8 घंटा कंपनी को देना। क्या कोई एम्प्लॉय 8 घंटा देता है कंपनी को? क्या अनएथिकल नहीं है जब वो 1 घंटे के लिए बीच में गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, या बीच में वो खाना का लंच टाइम है आधे घंटे का, वो 1 घंटे में सुट्टा मार के आ रहा है? क्या वो अनएथिकल नहीं है? तो अनएथिकल तो सारे एम्प्लॉइज हैं। तो सेल्स वाला एटलीस्ट टारगेट तो पूरा कर रहे हैं अनएथिकल होके। तो ये मेरा पॉइंट है। सही है। नहीं तो अब इस पे एक और क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो विजय माल्या जब 6000 करोड़ लेके भागा, आम जनता को खराब क्यों लगा? यस मिस्टर रवि प्लीज इसका जवाब दीजिए। इस बार खराब लगा था कि नहीं आपको, कि आपको लगे कोई फर्क नहीं पड़ा? हाँ बताइए रवि, आ रही है? फर्क नहीं पड़ा सर। अरे आपकी वॉइस थोड़ा लो हो गई है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? अच्छा, किसी को खराब लगा उससे पूछते हैं पहले, जिसको खराब लगा वो पहले बताए। विजय माल्या जब 6000 करोड़ लेके भागा, आपको खराब लगा क्या, या आपको कोई फर्क नहीं पड़ा? Anybody felt bad when Vijay Mallya left with 6000 crore? मुझे बहुत खराब लगा। अच्छा यस सर, क्यों खराब लगा आपको बताइए? खराब इसलिए लगा कि मैं एक्चुअली बिलीव करता हूँ कि एथिक्स इज हायर देन मेकिंग मनी। तो आपका कैरेक्टर अगर अच्छा नहीं है तो आप कितने बड़े धनवान हो, पैसे वाले हो, आई रियली डोंट केयर, आपकी कोई इज्जत नहीं है। तो विजय माल्या ने पैसे चोरी किए, झूठ बोलकर छट ठग के, तो उसने चोरी किया। कानूनी तो जो कार्रवाई होगी, बट फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स कि आप जो हो इस दुनिया में कोई कंपनी चला रहे हो
फॉर बिजनेस या नॉन प्रॉफिट। तो आप कंपनी के ओनर आप नहीं हो, आप जस्ट एक ट्रस्टी हो। स्टॉक होल्डर्स ने, कंपनी के एम्प्लॉयज ने सबको आपको जिम्मा दिया है कि आप हमारे लीडर हो और सही डिसीजन लो। बट अगर किसी ने उस जिम्मेवारी को नहीं पूरा किया ठीक से, उसने किसी को ठगा या झूठ बोला, तो उसने एथिक्स तोड़ा, ट्रस्ट तोड़ा, और जेल ही नहीं, उसको पाप भी लगेगा, उसको फिर नरक में भी उसके लिए जगह, सीट बुक हो जाएगा। That's all I want to say. Anybody else who felt bad or? मुझे बहुत सर नरक में बुरा लगा मुझे था। अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, उसमें भी आता है, जिसको अच्छा लगा उसमें भी पूछते हैं। हरी जी प्लीज पहले आप बताइए। हाँ मुझे अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा। मैं बताता हूँ कैसे। आपको ना नरक मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। डिप्लोमेटिक हो गया। तो उसको बोलते हैं त्रिशंकु। त्रिशंकु एक जगह है बीच में। अमर हो जाऊंगा मैं। नहीं, त्रिशंकु होता है, बीच में आप मत करिएगा। अच्छा ओके प्लीज हाँ एक्सप्लेन। तो मुझे अच्छा इस बात का लगा, मैं सौरभ को काउंटर करना चाहूंगा कि विजय माल्या जैसा इंडस्ट्रियलिस्ट खुद को बचा नहीं पाया और उसके हाथ से डीआईजीओ निकल गया, यूबी ग्रुप निकल गया, सब कुछ बेच बाच के उसको लंदन जाना पड़ा। ये चीज मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर उसने 6,000 करोड़ रुपए उसको लौटाने थे तो वो लौटा देता, बट उसका विल नहीं था, उसे लौटाना नहीं था। ही इज अ विलफुल डिफॉल्टर। तो इसीलिए उसने सब बेच बाच के ही गॉट सेटल्ड इन यूके, और वहां का ऑलरेडी ही इज हैविंग अ सिटीजनशिप, तो बच गया। और बुरा इस बात का लगा कि बैंक्स आर कीपिंग ऑन सेइंग द सेम थिंग कि विजय माल्या मेड अस अ लॉस ऑफ सो मच करोर्स। सो एसबीआई, एक्सिस, जो भी है, ऑल द प्राइवेट बैंक्स एंड पब्लिक बैंक्स सभी इन्वॉल्व है उसमें। तो ये एक चीज है कि मैं भी वही चाहूंगा जैसा अतुल सर बोले कि वो नरक में चला जाए, नरक मिले उनको भी। इतने गरीब लोगों का टैक्स का पैसा चुरा के मस्त भाग गए हैं। तो अब वो पॉइंट आता है कि whether he is a real culprit or not, वो पॉइंट भी प्रूव होना चाहिए। तो दैट इज द थिंग। और सेजल ने जो कहा, आई कुडंट गेट द फर्स्ट पॉइंट, इफ शी कैन रिपीट मैं देख लेता हूँ। और सौरभ, मैं पिछले 10 साल से तो सेल्स ही कर रहा हूँ यार। ओके, सो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ओवर कमिट करके सेल तो हो जाएगा आपका। ओके, यू विल बी हैप्पी, बॉस भी हैप्पी बस रहेगा, सेल्स की बात बट कर रहा ओवर था मैं, कमिट बस सेल्स करके। की, एग्जीक्यूशन की नहीं। हाँ, तो सेल्स तो मैंने भी किया है, ओवर कमिट करके भी किया है, मैंने भी किया है। बट तो फिर मेरा पर्सनल फीडबैक ऐसा है कि नहीं, ये गलत है। आपने कबूल किया कि आप आप 10 का 12 करते थे, 15 करते थे। नहीं वो अलग चीज है अभी। तो लेकिन वही है कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर आप खुद एंटरप्रेन्योर हो या ओनर हो तो बेटर जितना मतलब जितना सही दिखना चाहिए उतना सही दिखे उतना बेटर है। दैट्स व्हाट आई वांट। यार एक्चुअली इसमें बस मैं एक as good as truth. Yes sir. मैं बस छोटा सा चीज बोलूंगा। आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज पॉइंट, बट इंडिया इज नॉट अ कंड्यूसिव कंट्री फॉर एंटरप्रेन्योरशिप और डूइंग बिजनेस। इसीलिए थोड़ा बहुत ये सब करना जरूरी है, एल्स यू विल बी किक्ड ऑफ। एंड द रूल इज सेम, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो फिटेस्ट होना सिर्फ पैसा नहीं होता है, थोड़ा सा स्मार्टनेस भी होता है। अदरवाइज आप वो अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप इंटेंड करते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। रवि जी, मैं इस पे आंसर करना चाहूंगा सौरभ के इस पॉइंट पे। ओके सर प्लीज आप बताइए। हाँ, तो ये जो लोग बहाना बनाते हैं ना कि माहौल खराब है, सभी चोर है, इंडिया ही पूरा चोर है, सारे लोग बिना घूस दिए काम नहीं होता है, तो ये गलत है। पूरे दुनिया में चोरी भी होती है, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। मुझे एक याद है कि मैं मैनहट्टन में वेस्ट जो सुंदरवाला आर्ट्स किनारे ड्राइव कर रहा था, तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस ने, 2 गोरी पुलिस ने
पैसा मांगा, घूस मांगा, उनको $10 कुछ छोटा चाहिए था। तो फिर मिला अरे ये तो इंडिया में बदनाम है पुलिस वाले, न्यूयॉर्क में ऐसे कैसे लोग पैसा मांग रहे हैं। तो नहीं, चोर पूरे दुनिया में होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, कहीं कम होता है। ऑब्वियसली इंडिया थोड़ा अभी रिलेटिवली गरीब कंट्री है, तो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो इतना इन्वेस्टमेंट है, इवन जुडिशरी में जितने नंबर ऑफ जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, काफी कम है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली लोगों को चोरी करना आसान लगता है, क्योंकि उनके पकड़े जाने के बाद उसके जेल जाना टाइम लगता है। बट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों ने देखा है कि बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग जेल गए हैं, जेल की चक्की पीस रहे हैं। मतलब कि बड़े बड़े अरबपति लोग, बिजनेसमैन, उनका बिजनेस बैंकरप्ट हो गया है, बंद हो गया है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनकी पूरी क्या कहते हैं छापा मार के लालू यादव एक अच्छा एग्जाम्पल है। लालू यादव जी बिहार के चारा घोटाला में बहुत उन्होंने लूटा, बर्बाद किया, कुछ नहीं हुआ उनको। उनके बच्चे भी तरक्की कर रहे हैं, उनकी वाइफ सीएम बन गई, सब कुछ। लेकिन फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट मे बी 30 years he had to see jail। बुढ़ापे में उनको जेल देखना पड़ा। और जिस आईएएस ऑफिसर ने सबसे पहले उनको पकड़ा था उनके चारा घोटाला में 30 साल पहले, मुझे उनसे मिलने का मौका भी मिला है, तो मैं लिंक भेजूंगा एक मिनट पे। तो चोरी सबकी नहीं पकड़ी जाती है, टाइम लगता है। लेकिन ये बिल्कुल कहना गलत है कि चोरी करना ठीक है, सब करते हैं तो मैं भी करूं। आप केवल अपने कंडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। व्हाट यू डू यू आर रिस्पॉन्सिबल। आप दुनिया का बहाना नहीं बना सकते हो। आपने ट्रैफिक लाइट लॉ तोड़ा, आपको फाइन देना पड़ेगा। आपने किसी की हत्या की, आपको फांसी लगेगी। जिसने जो ट्रैफिक लाइट तोड़ा क्योंकि मुझे एक जगह पहुंचना था जो ज्यादा जरूरी था, तो मैं तो तोड़ूंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, आई एग्री कि वो गलत है ट्रैफिक लाइट तोड़ना। बट अगर आपको यू हैव टू अचीव योर ड्रीम्स, सौरभ, अगर आपने जान बचाने के लिए कोई किसी जमा हो तो आपको जल्दी मीटिंग में जल्दी जाना था, उसके लिए अगर ट्रैवल है तो आपको तो बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने दूसरे लोगों का लाइफ रिस्क है ना। आपने थोड़ा किसी और की जान भी जा सकती थी उसमें। I don't agree. This is a personal opinion. You might not respect that person, but उसके लिए that could be a matter of life or death, क्योंकि वो अपना बिजनेस करने जा रहा था और उससे उसको 100 करोड़ का रेवेन्यू हासिल होता। तो मैं तो इसको वैसे देखता हूँ। It is all about opportunity. Opportunity will never. सौरभ, आपका एग्जाम्पल याद आ गया। बहुत बड़े आदमी ने किया था ऐसे ही। ट्रैफिक में किसी के कुछ चलते हुए मर गया था। क्या नाम है उनका? इंडिया के बहुत फेमस आदमी जिनको की सजा भी नहीं, हिरन मारने के लिए हुआ था। सलमान। मरने की बात नहीं हो रही, हम मारना थोड़ी बोल रहे हैं आप। अब तो एक्सट्रीम बात हो रहा है। सलमान खान ने जो किया, हिरन को तो मारा, उसके लिए उनको सजा मिली, और रास्ते में जो फुटपाथ पे लोग थे उसको भी मार दिया, और वो बच गए क्योंकि बहुत बड़े आदमी थे। लेकिन वो क्या सही है? मेरे ख्याल से नहीं सही है। तो फिर लोग क्यों उसकी 300 करोड़, सारी मूवी उसकी 300 करोड़ की क्यों हो रही है? अतुल सर नहीं देख रहे होंगे मूवी, पर सारी इंडिया देख रही है, और हर मूवी 300-500 करोड़ से कम की होती नहीं है। तो आप यू माइट डिसरिस्पेक्ट हिम, बट एंटायर इंडिया लव्स हिम प्री कोविड। आई विल आंसर दैट। सॉरी, आई विल आंसर दैट। कि इस दुनिया में सारे लोग ईमानदार हरिश्चंद्र नहीं होते हैं। अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, और ज्यादातर लोग बीच में होते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग शाहरुख खान को उसकी मूवीज के एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, बट सारे लोग शाहरुख खान को उसमें रिस्पेक्ट करते नहीं। उसको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ी, और सिंपली ह्यूमन, बहुत सारा उसने अपना पीआर में पैसा खर्च किया। बट आज भी शाहरुख खान ने गलत किया तो गलत है, गलत था, गलत रहेगा। और जो भी कानून तोड़ा, जिसने भी किसी की जान ली, चाहे वो हिरन की ली, चाहे फुटपाथ पे सोए लोग, तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए। आज नहीं तो कल मिलेगी, और बहुतों को मिली है, तो लेट से मिली है। एक उसके लिए कोटेशन है, the arc of karma is long, but it's there। मतलब कि कभी-कभी ये कर्व्ड है, कभी-कभी तुरंत नहीं मिलता सजा, लेकिन टाइम लगता है, 20 साल 30 साल। लालू यादव इज अ गुड एग्जांपल। लालू यादव को बुढ़ापे में जेल देखना पड़ा, तो हुआ कि नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों को अभी हमारे गवर्नमेंट को, पीछे चिदम्बरम इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर था, अभी उसको जेल की चक्की खानी पड़ी कि नहीं। तो जिंदगी सर मैं चीटिंग करने बोल ही ना, आई एम नॉट सपोर्टिंग चीटिंग, आई एम जस्ट सेइंग। आप जान लेने की बात करो। ट्रैफिक राइट होना इज अ रिस्क टू पीपल ऑन द वॉकिंग ऑन द रोड। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे कुछ ड्रीम्स हैं जो मैं हासिल करना चाहता हूँ, इंडिया ऐसा सिस्टम नहीं है जहाँ पे आप इजिली कर सकते हो। लेट्स से आपको कोई लैंड खरीदना है, जब तक आप पैसा नहीं दोगे लैंड खरीदा ही नहीं जाएगा। तो आप बोल रहे हो कि मैं लैंड नहीं खरीदूं? Is this what you're trying to say? Because you have to bribe authority?
चोरी करके आप बिजनेस कर रहे हो ना, तो आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे। तो फिर तो मैं लैंड नहीं खरीद पाऊंगा, तो मैं वैसे ही छोटा सा बिजनेस चलाता रहूंगा। मत करो, आप नहीं कर सकते हो बिजनेस तो मत करो, लेकिन चोरी मत करो। चोरी मत करो। चोरी करना तो चोरी का नटवरलाल को आता डेफिनेशन था, डिफरेंट है। विजय माल्या को आता था ना, विजय माल्या ने किया, आज क्या हो रहा है उसका? तो वही आपके साथ। सर विजय माल्या की गलती इतनी है कि वो मुकेश अंबानी का भाई नहीं है, वरना अनिल अंबानी भी पैसा डुबा के बैठा हुआ था सीमेंस पे, उसका पैसे नहीं थे, वरना आज उसकी हम डिस्कशन कर रहे होते। दूसरों की हम दूसरों को लेकर लकी था अनिल अंबानी। नहीं, हम 100 लोगों का चोर बता सकते, देखो उसने भी चोरी किया, उसने भी चोरी किया, उसने भी धक्का मारा, मेरा भी सही नहीं। सर बिजनेस नहीं चला तो नहीं चला, बिजनेस नहीं चला, अब उसमें आपको मान लीजिए कि आपको बिना चोरी के क्लियर देखो नहीं चला, तो बंद कर दीजिए, कुछ और कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। नहीं ईमानदारी से ही कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ नहीं चल पाया, सस्टेन नहीं हो पाया, मुझे लेना पड़ा और मैं नहीं वापस कर पाया, तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छा, आते हैं इस पे, आते हैं। अच्छा ठीक, थोड़ा सा और स्टोरी वाइज समझते हैं। यस ले चलिए, हम कमेंट प्लीज कम इन। अच्छा रवि आल्सो, हाँ रवि जी आप बताइए। अच्छा, discussion is going on, so I'll put, see there are three things which we are talking. One is legal, illegal, ethical, unethical, and somehow like under law, out of the law. मोरल इमोरल बोल सकते हैं। हाँ, तो लीगल लीगली इट इज ऑल टुगेदर बाय गवर्नमेंट, वहां पे लॉ अगर है तो इफ यू गो अगेंस्ट इट इज इलीगल। एथिकल चीज कहीं हद तक मोरल से रिलेटेड रहता है, इट्स ऑलवेज इंटरनल, इट्स नेवर एक्सटर्नल। तीसरी बात यह है कि हम लोग कितना भी प्रोफेशंस को, जैसे माल्या के बारे में बोल रहे हैं कि माल्या सही किया या गलत किया या क्या किया, मेरा पॉइंट यही है कि एक बंदा जो बिजनेस सेटअप करता है, ही रन्स फॉर अ बिजनेस फॉर लॉन्ग टाइम, उसका लोन अप्रूवल जो हुआ उसमें सिर्फ माल्या ही नहीं इन्वॉल्व होगा, माल्या के साथ बहुत लोग इन्वॉल्व होंगे। अगर वो अनएथिकल है तो उसके साथ में वो सारे लोग भी अनएथिकल हुए ना, और अगर वो लोग नहीं है सिर्फ माल्या, तो फिर माल्या ही क्यों है? सही बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा था मैंने आपके आने से पहले कि एक अकेला को क्यों ब्लेम किया गया। होंगे तो बहुत लोग, खाया तो बहुत लोग, और फंसा खाली एक इंसान का नेगेटिव ब्रांडिंग हो गया। तो मैं बोलूं माल्या का अगर मैं मतलब राइट बात बताऊं, विजय माल्या को छोड़ दीजिए, जो विठल माल्या उनके पिताजी हैं, बैंगलोर में आज भी उनका विठल माल्या का हॉस्पिटल चलता है और एक रोड पूरा विठल माल्या के नाम पे है। इफ समबडी हु नोज हिम, माल्या जैसा बिजनेस अभी तक इंडिया में कोई नहीं किया है। आप सहारा के बारे में भी गलत बोलते हैं या फिर मतलब चोर बोलते हैं, लेकिन आई टेल यू सर, बिजनेसमैन दिमाग लगाता है चीजों को अपलिफ्ट करने के लिए, नहीं चलता है तो वो उसमें उसका गलती नहीं है, उसने ट्राई किया कुछ करने का, नहीं हुआ तो फिर देन वो चीजें बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि फाइनेंशियल चीज इन्वॉल्व रहता है। जिस दिन सहारा ने प्रोजेक्ट खड़ा किया था, लोगों से बात करके पैसे कलेक्ट किए थे, उस टाइम सेबी को प्रॉब्लम नहीं था, पैसे कलेक्ट हो गए, 5 मंथ्स का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, देन सेबी केन इन एंड से कि यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स, क्योंकि आज आपके पास पावर आ गया, आपने लॉ को चेंज कर दिया, उस लॉ में अब वो जो पहले वाला प्रोजेक्ट चल रहा है वो फिट इन नहीं बैठ रहा है, सो इधर आई हैव टू पे यू और आई हैव टू लूज माय बिजनेस। माल्या के केस में भी यही हुआ, उसका लोन चल रहा था, 6 करोड़ के लोन में उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रखा है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बैंक का ऑलरेडी अरे बैंक का एनपीए चल रहा है सर। एनपीए रवि जी, बैंक इंटरेस्ट पे ही कमाती है, और बैंक जो लोन देता है 6 करोड़ का, तो उसका प्रिंसिपल ही है। दैट इज व्हाट सर, अभी बिजनेस को कैसे आप यूज करते हैं। आप सोचिए कि आरबीआई रेपो रेट आज 4.44% पे आ गया है, लेकिन आज भी बैंक पर्सनल लो आपको 13% पे दे रही है। अरे डबल लो, ट्रिपल ले रहे हैं आप कस्टमर से, लेकिन इस पे कोई लॉ नहीं है, तो ये लीगल है। नहीं, डेफिनेटली उसमें ऐसा ही है कि जिसने गारंटी दिया, जिसने पेपर पे साइन किया, जिसकी कंपनी है, बैंक उसी को पकड़ेगी। आज एयर इंडिया प्रॉब्लम हो गया, कुछ नहीं कर रही है,
गवर्नमेंट की ऑलमोस्ट 70% कंपनीज डूबा पड़ा है। करेक्ट। उसके लिए इलीगल या फिर अनएथिकल कौन हो रहा है सर? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई आईपीएस ऑफिसर को हम लोग तो जिम्मेवार नहीं ठहराते हैं, लेकिन सारे गवर्नमेंट पीएसयू हैं, सब पे आईपीएस ऑफिसर ही बैठे हुए हैं ऊपर में जो कमांड कर रहे हैं। सारी कंपनी लॉस में चल रही है। बीएसएनएल का ऐसा हालत है कि सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो किस हिसाब से इसी वजह से तो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सब। अभी कमिंग टू एयर इंडिया जो था पहले टाटा चलाती थी, टाटा एयरलाइंस। सो उसका नेशनलाइजेशन किया गया। तो उस वक्त टाटा की क्या गलती थी? तो बोला कि नहीं ये तो गवर्नमेंट का होना चाहिए, पब्लिक का होना चाहिए, चलो इसको नेशनलाइज करो। एयर इंडिया किया और उसके बाद में लॉस में हो गया एयर इंडिया, और आज जाके फिर से टाटा को ही वो चीज मिल रहा है। उसका प्राइवेटाइजेशन का भी इशू आ गया है, इतने साल से लॉस में चला रहे। तो ऐसा नहीं है कि उसका अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रहा है, ये सब जमा हो रहा है कि ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है कि एयर इंडिया को लॉस होने के बाद इतने सारे जो लोन्स थे सभी राइट ऑफ कर दिए गए एज पर गवर्नमेंट। सो ये तो बहुत गलत हुआ। बट देन क्वेश्चन वही है कि विजय माल्या जैसा एक बिजनेसमैन है, तो उसके राइट ऑफ करने में आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? तो ये क्वेश्चन तो डिबेटेबल है। बट थिंग इज कि अगर ऐसा हो रहा है किसी गवर्नमेंट इसमें, सो ग्रेजुअली उसका प्राइवेटाइजेशन इज पक्का। वो प्राइवेटाइजेशन, वो कंपनी बिकम्स अ प्राइवेट, उसका ऑक्शन हो जाएगा या और एल्स वो चीज तो होना ही है। और ये जो गवर्नमेंट जो है, ब्यूरोक्रेसी इज मेजर प्रॉब्लम। ब्यूरोक्रेसी में तो होता ही है कि वंस यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा है, आईएएस हो आप, सो डेफिनेटली वहां पे ये सब चीजें प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। बट वो दिखने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि हमारा सिस्टम वैसा है, हमने जो सिस्टम डिजाइन किया है वो वैसा ही है। तो that's what I want to say. और विजय माल्या इज विलफुल डिफॉल्टर। अगर बैंक का देखा जाए तो बैंक के नजरिए से देखो तो इट इज अ विलफुल डिफॉल्टर फॉर देम। और मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि जो पकड़ा गया वही चोर होता है। सो बेटर पकड़े ही ना जाओ या चोरी मत करो। सेजल का हाथ दर्द हो गया है बटन काम नहीं कर रहा है क्या सेजल तुम्हारा? सेजल प्लीज। आपने मुझे होस्ट बना दिया ना, तो वो बटन हट जाता है। हट जाता है क्या? अच्छा ओके, अच्छा ठीक है। सर सिग्नल तोड़ने वाली बात पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। सर जितने भी कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं और आज जो बिलियनियर्स हैं, उन सब ने अनएथिकल काम किया है। कॉलेज बीच में छोड़ना कुछ एथिकल नहीं है, पर आज वो हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और बहुत सारा दान भी कर रहे हैं, सब कुछ एथिकल कर रहे हैं, पर उनने जो किया वो अनएथिकल। तो अब नरक, स्वर्ग और फिर नरक की सीट्स फुल है, कोई जगह नहीं बची है। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, बीडी में जो लोग लेट आते हैं वो एथिकल है या अनएथिकल है? उनको क्या करना चाहिए उनके साथ? बिल्कुल अनएथिकल है। They should pay fees of people who come on time. तो मैं कुछ सेजल की बात पे कुछ बोलूं मैं? ये सब टाइम हो गया आज का, इसको कंटिन्यू करते हैं कल। आई गेस आई थिंक लॉट ऑफ थिंग्स है। तो मैं लास्ट एक सेंटेंस बोलता हूँ, इस पे सोचना है सबको कि दोस्त फेल हो जाए तो बड़ा दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉपर हो जाए उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो ऐसा क्यों होता है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे कल का डिबेट, ठीक है? ओके अच्छा रवि जी बताइए। हाँ बताइए। एक मुझे लास्ट पे वो विजय माल्या के केस में थोड़ा सा एक पॉइंट डालना है। अच्छा बोल दीजिए। एक्स्ट्रा बोलने का भी चार्ज लेंगे आपसे। बोलिए। जो किंगफिशर है जब डाउन गया तो पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग विजय माल्या पे, लेकिन विजय माल्या था जो एयर डक्कन करके एक फ्लाइट था, कंपनी थी जो लॉस जा रही थी, तो उसने उसको परचेज किया था अंडर कांग्रेस गवर्नमेंट। कांग्रेस ने एडवाइस किया कि आप परचेज कर लो, तो उसने परचेज किया। अभी जो लॉस डाल रही थी, दिस इज हाउ बिजनेस हैपेंस कि भैया आई एम रेडी टू टेक अ रिस्क। कल बात करते हैं। आई थिंक बहुत सारा चीज अनसेड है अभी। थिंक एथिक्स वर्सेस लीगल पार्ट वर्सेस ह्यूमन साइकोलॉजी इटसेल्फ। जो मैंने बोला कि दोस्त अगर टॉप कर जाए तो भी दुखी होता है इंसान को। डिमोनेटाइजेशन का भी एग्जांपल दे देता हूँ। किसी का 1000 रुपया लॉस हुआ बट किसी का लाख हुआ, तो 1000 वाला
खुश हुआ कि मेरा तो 1000 ही हुआ, सामने वाला का तो लाख हो गया, तो खुशी का माहौल था जस्ट बिकॉज द लॉस वाज लेस। तो इसको कल डिस्कस करते हैं कि क्यों है ऐसा। कल विशाल सबसे ज्यादा हंसे थे जब मैंने बोला था मेरा 25 लाख डूब गया था। आज भी हंस रहे अभी। फ्रेंचाइजी दे दो सौरव इनको। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सौरव ने भी वो हंसते हुए ही बोला था, इसलिए हम हंसते हैं। अगर वो रोते हुए बोलता तो हम सांत्वना देते कि नहीं प्लीज चलो हो गया। तो ये चीज था, वो amplify ये किया ना। एथिकल नहीं है विशाल, ये अनएथिकल है। तो मुझे क्यों रोना है जब तुम खुद हंस रहे हो? तो वी शुड सेलिब्रेट आवर लॉस एक्चुअली। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। Yes, yes. Yeah, good night.